Very good morning, students. In today's video we are going to revise chapter first of your history book, which is what, where, how and when. So we are going to cover all the questions who are probing about the past. In this particular chapter we will be discussing what we know about the past, like where did people live, how did they live, what happened in one particular era. We will touch up the name regarding, we will focus how this land got this name, and more facts about the past, how we come to know about this past. Do we have just one past, or there are many things which are there buried in the past? And we will also understand the concept of dates in this particular chapter. So let's begin. As we know that we all now are living in society, how it is happening, why this is happening. Sometimes we do question and sometimes we accept as the norm of the society and keep on doing the same thing. So how all these things like begin in the past. Okay, we begin to take the word for granted, but many a times we forget that life was not always what we see. So how it was in the beginning, just a brief look into the history in this chapter, what, when and how all these things happen and where they happen. This is the main things we need to cover in this topic. So first of all, what can we know about the past? What are all the things which can we know about the past? Because we don't have a time machine, we are not going back in that era to understand the things. किस तरह से हम पास्ट को समझते हैं? Many a times when we have further we have done many chapters, we have, when we have talked about Harappa civilization, we have like learned that the language or the script they were using is still not readable by us, that we can't differ the information which is given in this. Then how we come to know? Sometime we can read those proofs and sometimes we are unable to read the proof which the history which is there to tell us about the history. So this is a very very complicated sometimes, because आप पिक्चर्स से देख सकते हो, आप बिल्डिंग से समझ सकते हो, लेकिन कई बार आपके पास ऐसी राइटिंग्स आ सकती हैं जिनको हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए. हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है. तो कैसे हम पास्ट को समझते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स. आप सब आई नो आर वेल अवेयर कि यूजिंग दोज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, बी इट अ बिल्डिंग, राइटिंग, any kind of potware or any kind of coins, stones, paintings, all these things like contribute in enhancing our knowledge about the past. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग कि हम समझ क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं. एग्जैक्टली वी कांट, इट इज देयर दैट वी कांट नो ईच एंड एवरीथिंग विच वाज हैपनिंग इन पास्ट, बिकॉज ऑफ द सिंपल लॉजिक दैट नॉट ऑल द थिंग्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. सब कुछ नहीं लिखा जाता था, सब कुछ नहीं सहज के रखा जाता था आगे आने वाली जनरेशन के लिए. तो हम कितना जान सकते हैं पास्ट के बारे में? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट, सच एज what people used to eat, the type of clothes they used to wear, the houses in which they live. This can be evaluated. How were the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artisans, musicians and scientists were? What games were played by the children? The stories what they heard, everything we have traced out bit history about many things. And as you have already gone through the later chapter, you know how this chapter in fact will be more easy now to understand, because you have read many a chapter in your book in which we have discussed how we come to know about Harappa civilization, how we come to know how people were buried. So graves को excavate करके उनके अंदर जो skeletons हैं उनको study करके हमको पता लगा. तो अभी ये चीज़ समझना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है आपके लिए कि कैसे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं. Where did people live?
So in this chapter there are a number of facts which we need to learn from question answer point of view. Each every line there can be one small question can be made. So let's go through the facts which are there in this chapter. It tells about where did people live in the past. People have lived along the banks of the Narmada river for several 100,000 years. These people stayed on the bank of Narmada river as they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. Remember, everywhere you find a civilization, you will find a water body near that, because पानी बेसिक नेसेसिटी है और हमेशा से रहा था और हमेशा रहेगा भी. तो आपको जब भी जीवन मिलेगा, कोई भी आपको सभ्यता मिलेगी, कोई भी सिविलाइजेशन you will find that near a water body, mainly a river. क्योंकि लोगों को पानी चाहिए, खेती बाड़ी बाद में आई, उससे पहले पीने के लिए चाहिए, जानवरों के लिए चाहिए. तो पानी की बहुत आवश्यकता है जीवन में, और जितनी भी सिविलाइजेशन मिलेंगी आपको अर्ली, वो हमेशा आपको ऐसे ही वाटर बॉडी के पास मिलेंगे. सो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक नर्मदा रिवर के पास रहे, क्योंकि उनको पानी तो मिलता ही था, साथ में पानी की वजह से जो फॉरेस्ट एरिया जो इतना एनरिच था, वहाँ से भी उनको बहुत सारी वेल्थ मिलती थी. वेल्थ इन द सेंस कि उनको रूट्स खाने के लिए, फ्रूट्स मिलते थे, एनिमल्स थे तो एनिमल स्किन का भी वो यूज़ करते थे, एनिमल्स को हंट भी करते थे. So the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley was about 8,000 years ago. So please mark it that in your book it is given that around 8,000 years the agriculture has been started. Okay, and they have firstly grown wheat and barley, and then people also began to look after animals like sheep, goat and cattle and used to live in villages. और गाँव में वो लोग रहते थे. The places where rice was first grown are the north of the Vindhyas. North of Vindhya range के जो north के अंदर आपको पहले चावल की खेती मिली, मतलब वहाँ से चावल के traces मिले आपको. About 2,500 years ago, city develops on the bank of Ganga and its tributaries एंड अलोंग द सी कोस्ट. आपको गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास जो आपको सिविलाइजेशंस मिलती हैं, उसके ट्रेसेस आपको 2500 ईयर्स एगो के मिलते हैं. पहले टाइम में द एरिया अलोंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा was known as Magda, which is now lying in the present state of बिहार. कहाँ पर है? आज के बिहार में. पहले क्या था? मगधा था. तो आपको ये याद रखना है कि साउथ ऑफ गंगा रिवर के जो था वहाँ पर हमें बिहार या मगधा के ट्रेसेस मिलते हैं. Men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like flood and droughts. These movements of people enrich our cultural traditions. People have shared new way of carving stones, composing music and even cooking food over several hundred of years. ये चीज़ यहाँ पर समझिए कि जैसे आज कुकिंग है ना, लाइक आपने गैस स्टोव ऑन किया और फटाफट से यूटेंसिल्स की हेल्प से आपने कुक कर लिया या ओवन में कुक कर लिया. लाइफ वॉज नेवर लाइक दिस फॉर अर्ली मैन. उसको तो पहले फायर की डिस्कवरी करनी पड़ी थी, उसने पहले फायर को किया, उससे पहले वो रॉ फूड खाता था. उसके बाद फायर की डिस्कवरी के बाद जब इंसिडेंटली एक बार उसको कुक्ड फूड खाने का चांस मिला, देन ही कम टू नो दैट फूड कुड बी कुक्ड एंड इट कैन बी मोर टेस्टी और मोर डाइजेस्टेबल. देन दे स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग फूड, अदरवाइज अर्लियर दे वर ईटिंग रॉ फूड. तो आज के सिनेरियो में पिछला उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत ही कई बार डिफिकल्ट भी हो सकता है. बट आपको ये चीज देखनी है कि ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर लाइक दीज अर्ली मैन, जो कि हमारे एंसेस्टर्स थे या हमारे जहाँ से हम इवॉल्व हुए, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उन्होंने बड़ी हार्डशिप से ये चीज़ें सीखी हैं. एंड जो बच्चे हिंदू कल्चर को बिलीव करते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू रिलेट द थिंग्स विद द प्रेजेंट एक्टिविटीज़, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हमारा कल्चर है, उससे रिलेट करके अगर आपको चीज़ें समझाई जाएँ तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है
के बच्चों की, ऐसा मुझे लगता है। और जितने बच्चे अभी हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, लाइक जो बच्चे हिंदू कल्चर को समझते हैं, हमारी स्कूल जो आप लोग में से अगर, तो आपको पता होगा कि आजकल हम लोगों के घर में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। लाइक हम इसको बोलते हैं श्राद्ध पक्ष चल रहा है। दिस इज व्हाट, अगर आप साइंटिफिकली देखें ना, या आप मतलब इस चीज को देखें, तो दिस इज अ वे टू पे ग्रैटिट्यूड टू आवर एंसेस्टर्स हु हैव गिवन ऑल दिस हैप्पीनेस, हु हैव गिवन अस दिस। इसको एक सुपरस्टिशन की तरह नहीं देखिए कि हाँ श्राद्ध हो रहे हैं, आप खाना खिला रहे हो, पूर्वजों के पास थोड़ी ना जा रहा है अब आप जो खिला रहे हो, तब तो आपने किया नहीं। एक्चुअली जस्ट सी दिस थिंग इन अ न्यू लाइट कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर लाइक thanking our ancestors who have gone through so many hardship to give us all these facilities which are living in us. So paying gratitude is a big thing. और इस तरह से ये जो हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ हमें जनरेशन बाय जनरेशन सिखाई जाती है कि दिस इज अ पर्टिकुलर मंथ एंड एनी टाइम यू कैन पे ग्रैटिट्यूड। बट कुछ सिग्निफिकेंट है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, आर्कोलॉजिकल मतलब सॉरी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि इस पीरियड के अंदर अपने एंसेस्टर्स को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा बताती है। सो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे रूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सही हैं। तो हम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि इतनी मुश्किल से उन्होंने जो चीज़ें इन्वेंट की, डिस्कवर की, जो खुशियां हमारे तक लेके आए, उनको एक रिस्पेक्ट देने का, उनको थैंक्स देने का ये मंथ होता है हिंदू ट्रेडिशन के अंदर। और इसको आप रिलेट करके देखिए कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो हमारे पूर्वज हमें इतना बड़ा घर और इतने अच्छा सेटअप दे गए कि आज हम इतनी अच्छी पोजीशन में है, तो उनको थैंक करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज रिलेट होती है, लाइक ठीक है। तो जो एंसेस्टर्स थे उनकी हार्डशिप्स को लर्न करने का ये टाइम है, उनको एक्नॉलेज करने का ये टाइम होता है। तो इंडिया भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस मिलेंगे जो कि वाकई बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल तरीके से लेके आए, लेकिन बाद में लेटर ऑन ड्यू टू द इन्वेजन्स एंड ड्यू टू द करप्शन ऑफ द कल्चर उन चीज़ों के मायने जो थे, सही मायने जो थे, वो हम लोग तक नहीं पहुंच पाए, हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो रियली इट्स अ टाइम टू रिवाइव आवर रूट्स, उनके बारे में समझना। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ आवर कंट्री गेट द नेम भारता, राइट। आपको पता है इंडिया भी बोला जाता है। हमारे देश का भारतवर्ष नाम जो था वो बहुत पुराने टाइम से चला जा रहा है, जो कि नेटिव लोगों का दिया हुआ था भारत, ठीक है। इंडिया तो ब्रिटिशर्स के बाद की कहानी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु in Sanskrit. The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago called it as Hindus or the Indus, and the land of the east of the river was called India. ठीक है, इसलिए इनके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री ये बता रही है हमें कि इंडिया जो इंडस नदी के कारण था, जिसको जिसका मतलब सिंधु था संस्कृत में, या हिंदूज जो यहाँ के लोगों को बोलते थे, इस तरह से ये जो नाम है डेवलप हो गया। जब व्हेन यू गो इनटू हायर क्लासेस ना, एंड व्हेन यू गेट इन्वॉल्व्ड इन हिस्ट्री डीपली, you will see that there are many contradiction statements. Sometimes what we read is not completely राइट। सो यहाँ पर एक मॉरल एथिक जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें, किसी भी चीज़ को आप पढ़ें, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। डू योर ओन होमवर्क, डू योर ओन रिसर्च, फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट इट एंड देन मेक एनी एक विचारधारा आप तब बनाइए, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट। अगर आप डिफरेंट ऑथर को पढ़ेंगे तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपको उनके डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। सो दैट मीन्स कि एक इंसान ने अपनी मानसिक कैपेबिलिटीज के हिसाब से लिखा, अपने बिलीव्स के हिसाब से लिखा, दूसरे ने अपने बिलीव्स, एक जो चीज को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। तो आप फैक्ट्स को पढ़िए, फैक्ट्स को समझिए, अपना रिसर्च कीजिए एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच। हु सेज की हिस्ट्री में साइंटिफिक अप्रोच नहीं हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है। आप हिस्ट्री को पढ़िए, तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिए। आज बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, आज हमारे टाइम में बहुत ज्यादा
ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो हिस्ट्री हमें ब्रिटिशर्स दे गए, क्या वाकई वो हमारी इंडियन कल्चर की हिस्ट्री थी? बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इंडियन कल्चर जो था, जो एक्चुअली हिंदू कल्चर था, जो हमारी इस देश की सिविलाइजेशन थी, उसको ब्रिंग अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट वन थिंग इन लाइफ, और ये सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, टू बी अ गुड सिटीजन, टू बी अ गुड पर्सन, ऑलवेज लिसन टू एवरीबडी एंड then do investigation and then come to any result before making a fixed ideology कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि ऐसा facts कह रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब नाम भारता की बात करते हैं। was used by the people, a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to 3500 year back. Later it was used for the country. तो इसलिए हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है कि नेटिव लोगों ने इसको किया। नाउ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हाउ वी लर्न अबाउट द पास्ट। One way through which we can find about our past is by reading the books that were written long ago. Books को पढ़ के ला सकते हैं। These books are called manuscripts because they were written by hand. वो palm leaves पे लिखी जाती थी, और जब palm leaves पे नहीं लिखी जाती थी तो कई बार because paper was not invented at that time, तो they were like written on a special bark of a tree known as birch which grows in Himalaya। तो पेड़ की जो छाल होती है, जो पेड़ का ऊपर तने के ऊपर जो होता है छाल, जिसको हम bark बोलते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता था, और birch tree की उसके ऊपर लिखा जाता था। तो ये important question कई बार इसमें से आता है। So these books dealt with all kind of subject, religious belief के बारे में भी लिखा है, practices के बारे में भी लिखा है, life of king के बारे में, medicine, science, and always remember कि बुक्स जो लिखी जाती थी वो ज्यादातर किंग्स को फोकस करती थी। यू हैव रेड दिस इन योर लेटर चैप्टर्स। आम लोगों के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा जाता था। हिस्ट्री लिखी जाती थी जो ग्रेट पर्सनालिटीज होती थी उसके बारे में। आम लोगों के बारे में हिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए अलग तरीके। अब यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट्स व्हिच आर रिटन बुक्स, जस्ट लेट्स रिकॉल वंस अगेन कि अभी भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर जो राइटिंग्स हैं वी आर अनएबल टू डेफर देम, उनको समझने की समर्थ अभी तक भी हमें नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस आर writing but relatively on hard surfaces such as stone, metal, etc. Excuse me. In the past, when kings wanted their orders inscribed so that people could see, read and obey them, they used inscriptions for this purpose. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including king and queens, record what they did. For example, records of victories in battles. So inscriptions are very, very important, and they have revealed many facts about the various rulers, various victories, various battles in this what happened in this land. Then next is archaeologist. Who is an archaeologist? Listen, archaeologist is a person who studies the remains of buildings made of stones and bricks, paintings and sculptures. They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pens, ornaments and coins. They also look for bones of animals, birds, fish to find out what people ate in the past. So how do people know, how do we know that what people ate? There are remains of, if animals, there are remains, we find seed also. So from these we conclude what did they eat. Now historian use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past became an adventure. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. So एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हिस्टोरियंस क्या होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। हिस्टोरियंस को हम एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं दे सकते, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की हम एक रिक्वायर्ड फील्ड फिक्स कर देते हैं, जो बिल्डिंग से या स्टोन से जो चीजें हैं उनसे ही इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये हेल्प करते हैं, जो भी क्लूज मिलते हैं उनको रीड करके, स्टडी करके, कुछ कंक्लूजन निकाल के ये हमको हेल्प करते हैं कि क्या चीज कैसे हुई होगी।
Okay, are you understanding these things? So you need to mark many important things also in the book. Though I have taken up all the things, but you need to means multiple questions can be made from this. What are manuscript, from which trees bark, which trees bark was used to in writing purpose. So these are many, there are many questions. Earlier Vedas were written in Sanskrit and some are in Prakrit. So you need to underline all these lines so that you can later recall all these things. Okay, so there are many questions. I will try and give you some work relating this chapter today so that you will be able to like cover up this topic. So now let's quickly cover more topics. Like it is, the next topic is one past or many past. So how we come to know that the title of this book, Our Pasts. The word past is plural, is used to draw attention to the fact that the past were different for different group of people. For example, the life of herders or farmers were different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craft persons, and so on. So basically what we are, why this topic are past, because it is dealing with the past of many sect of society, many people which are living in this country, many classes were also prevalent there. So these are in this book we are talking about the past of all those things. So I have written it in the plural form, our past. And so it is even true today as people follow different practices and customs in different part of the country. Archaeology didn't help us to know more about the ordinary people in the past because they didn't keep records of what they did. This is what I have told you earlier कि राजाओं महाराजाओं के बारे में ही पास्ट लिखा जाता था. उनके दरबार के अंदर स्पेशली असाइंड लोग होते थे जो कि उनकी लाइफ, उनकी विक्ट्रीज को, उनकी फैमिली में जो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हुई है या किसी आगे वाली आनी जनरेशन का कब बर्थ हुआ है, क्या है, वो सारे रिकॉर्ड्स नोट डाउन करते थे. तो आई हैव टोल्ड यू कि अर्लियर ऑल्सो कि वी डोंट हैव दैट मच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म फॉर कॉमनर्स. कॉमन पीपल के लिए इतना ज्यादा हमारे पास ट्रेस आउट करने के लिए रिटन मटेरियल जो है वो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें थी वो लिखी किसके बारे में जाती थी, किंग्स के बारे में, नोबैलिटी के बारे में लिखी जाती थी, जो रॉयल क्लास थी उनके बारे में लिखी जाती थी. So this is like one part. This is why we are using like plural past in this. और अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि कैसे पास्ट डिफरेंट होता था सबका. लाइक टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बाय कंट्रास्ट मेनी पीपल लिविंग इन सिटी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड. सो यू सी, आज की प्रेजेंट कंडीशन में ही आपको डिफरेंस पता लग रहा है. ऐसे ही डिफरेंसेस जो थे वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे. तो वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे kept record of all these victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, and your farmers, herders, they didn't keep record of what they did. While archaeology help us to find out about their life, there is much that remains unknown because we don't have evidence, we don't have findings for that. So this was about about the topic one past or many. Now we need to discuss about the date. What do dates mean? So if somebody asks you date, you will probably mention the date, month and year and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. क्योंकि हम ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, तो ये किस पे बेस्ड है, जो उनके लॉर्ड हैं जीसस क्रिस्ट हैं उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली होता है. इसीलिए ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड काउंट करते हैं. और यूजुअली दे हैव द वर्ड BC बिफोर देम. अंडरस्टैंड, ये BC AD बहुत सारे ये क्वेश्चंस हैं. आपका एक डायलॉग बॉक्स है, यू नीड टू रेफर दैट डायलॉग बॉक्स विच टॉक्स अबाउट डेट्स, लेटर्स विद डेट. सो BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. ओके, एंड यू विल sometime find out this what they call AD.
that is like a Latin word. Anno Domini means the year of the Lord. That is the year in which Lord was born. Okay. So this is all about like what you need to understand, that this terminology is like, this terminology is used for it is related with the birth of Jesus Christ. And now AD and BC I have cleared that before the Christ we use BC, and after his birth the dates are having AD. So what is AC? There was a question where what is AC. So let me tell you that in some part instead of AD they use CE, that is common era, and instead of BC they use BCE, before common era. So this is these are the terms, like एक ही चीज को अलग तरह से बोलने वाली बात है. कई बार जो है आपको BP वर्ड भी बिफोर प्रेजेंट भी यूज किया जाएगा, तो आप ये समझिए ये सिनोनिम्स है इसके. AD का जो है वो सिनोनिम दे रखा है आपको CE, और BCE का आपको दे रखा है BC. तो डोंट गेट कंफ्यूज, कुछ भी नहीं है. सिर्फ सिंपल आपको क्या लॉजिक याद रखना है कि दिस इज रिलेटेड विद द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस, और जो उनके टाइम से पहले के हैं उनके साथ BC लगाना है, और BC के लिए ही आप कई बार BCE लगा सकते हो. सो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और उनके बर्थ के टाइम के बाद की जो चीज है वो AD है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Just read the chapter, just watch this video, and we will be taking, if you have any doubt regarding this chapter today in the doubt class. Bye for now, take care.